अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले और अमेरिका में रहने वाले तमाम तर हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को आपके होस्ट सैयद ज़ुबैर राशिद का बहुत बहुत सलाम। और वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है कि सकाफ़त जो होती है एक मुल्क की नुमाइंदगी करती है, और उस मुल्क की अगर नुमाइंदगी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ सकाफ़त के जो रंग हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नज़र आते हैं। और अगर आज की थीम के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इसमें बड़ी खूबसूरत सी एक हमारी डिज़ाइनर है परिशे की जानिब से आज यहाँ पर फ़लस्तीन से मुतल्लिक एक मैसेज जो है अपने रैंप वॉक के ज़रिए, अपनी फ़ैशन के ज़रिए जो है यहाँ पर उसकी नुमाइंदगी की जाएगी। तो बड़ी खूबसूरत रंगों की बहार होगी। और आप देख सकते हैं कि मैं ख़ुद भी जो है बड़ा एक कह सकते हैं कि मौके की मुनासिबत से जो है आज यहाँ पर मैंने भी ड्रेसिंग की है, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि दिलों को जोड़ती है, दिलों को आपस में मिलाती है। और कल्चर ही एक ऐसी कह सकते हैं कि एलिमेंट है जो कि आपके दिलों में मोहब्बत को उजागर करता है, बदनिस्बत इसके कि नफ़रत को जो है परवान जो है वो चढ़ाया जाए। शायकीन की तवज्जो समेटने के लिए आज का फैशन शो जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम में। आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे तो आपको बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम। और हम फैशन शो में यकीनन मौजूद हैं। टी टाइप का ये फैशन शो है और यहाँ पर ना कि सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुमालिक से जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिसारा हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को अप्रिशिएट इस लिहाज से कर रही हैं कि इनको पाकिस्तानी कल्चर और ट्रेंड जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। थैंक यू डिसारा। हाउ आर यू डूइंग? Well, I'm doing great. How are you? I'm fine. Okay, Sarah, it's such a wonderful event it is going on. What would you like to say regarding the cultural diversity of this event? Well, I absolutely loved it, and it was so interesting to see not just Pakistani traditional, but we also had a Dutch designer here today. And it was such a beautiful, beautiful melting pot of different cultures. It was amazing. Oh, that's great. So any kind of particular thing which you have noticed in the ramp walk? Well, I noticed a lot of embroidery, and that takes a lot of skill, and it was incredible work. So do you like the handmade craft? Have you seen it? Well, you know, typically with handmade, it's very difficult to get the quality perfect, and I was so impressed to see because the quality was incredible of all the pieces that were shown. Every stitch was in the perfect place. Oh, that's good. Okay, you are a foreigner, and as a Pakistani, we would love to do the hospitality. So you are at Pakistan. Have you eat any kind of Pakistani dishes regarding biryani, halwa puri, and all? Of course. So let me put it like this: I had samosas. It was delicious, but it was so spicy I had to cry after. I've had biryani. I love naan bread. The meat with in the rice. I think it's jollof rice. It's called. I tried that as well. So I've just been eating a lot of different foods here, and it's amazing. Super tasty. Pakistan also recognized as a kind of our shops, our markets is also famous regarding the cultural and traditional equipment or clothes. So do you have any kind of desire to visit any such market in Pakistan or especially in Karachi? Well, I'm actually going to the market on Sunday. Or I don't know, maybe Saturday even. I'm going there to buy some textile. So for sure, I'm going to check it out. And I also have this small statue of truck art at home from my previous trips to Pakistan. I absolutely love it. Visited before as well? Of course. I love it. I keep coming back. Great. Okay. Any
tourist place which you have visited in Pakistan? Well, I did visit the mosque in Islamabad, the very famous one. And basically, most cases when I'm here, I'm actually here for business. I would love to see the old Jinnah house because I've heard it has so much history, and I did my reading on it, and I'm fascinated. And I want to see more places in Pakistan. Also, especially, you know, the natural features. Incredible. I've only seen it online, but it does look like it was taken out of a fairy tale. So I want to visit. It's cool. It seems good. Okay, when you visit your homeland, so one thing that you will going to miss from Pakistan? Good food, good weather, and amazing hospitality. Super kind people. It's not easy to come by, and you know everyone will go out of their way to try and make you feel at home, and it's so caring that I have no words to describe it. So really, thank you so much. It's been amazing. Literally, it is an honor to host you guys, and literally, you all are the guest of us, and we all are in Urdu we can say mezban. We are the mezban of yours, and you are the mehman. Okay, well, I hope we can return the favor. Inshallah. Any message would you like to give from your country to the Pakistani audience, or it is a American-based channel? So, would you like to give any kind of message to the audience? Well, what message do you want me to give? I could give a lot of messages. Any peaceful message I'm talking about. Well, what was that phrase you taught me yesterday? Pakistan Zindabad? Oh my God! I remembered it. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Disara. Thank you so much for being with us, and I hope that you will visit us again and again. Of course, every time. Even for my own skincare brand, we're launching a homeware line, and I buy the slippers and all the textile from Pakistan. So you'll be seeing much more of me here. Thank you so much. Thank you. सारा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी खूबसूरत से इनसे गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम में कहीं मत जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटी सी रैंप आप देखिए, उसके बाद हम आपको मज़ीद आर्टिस्टों से और फनकारों से मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तानी जो मारूफ डिज़ाइनर्स हैं, उनकी जानिब से बड़े खूबसूरत से मलबूसात ज़ेबतन की जो मॉडल्स हैं, वो यहाँ पर जो है रैम्प वॉक पर जलवे बिखेर रही हैं। हुमायूं आलमगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोबिस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही पुराना नाम, बहुत बड़ा नाम, और यकीनन इनकी पेशा वराना खिदमात हैं। अगर फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो हुमायूं आलमगीर का जो नाम है हमें सर फहरिस्त दिखा देता है। इनसे आप आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जानते हैं। हुमायूं, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको कि इतने बड़े फैशन शो का आप हिस्सा हैं, और यकीनन यहाँ पर जो है ये फैशन शो इसी तरीके से रंगीनियों के साथ जारी वो सारी है। हुमायूं, मुझे बताइए कौन कौन से नए ट्रेंड जो हैं या नए जो मलबूसात हैं वो मुतारिफ़ करवाएं। यार, हम लोग तो वेस्टर्न शो कर रहे थे, सूट्स एंड टक्सीडोज़, और हमारी कलेक्शन का नाम था टाइमलेस टक्सीडोज़। जैसे कि नाम कहता है टाइमलेस टक्सीडोज़, तो टक्सीडोज़ थे, डिफरेंट कट्स के साथ थे, एम्ब्रॉयडरीज के साथ थे, हाथ के काम के साथ थे, डिफरेंट फैब्रिक थे, पैंट्स के कट बहुत मज़े के थे, बेल्ट्स थे, क्योंकि हम थोड़ा पुराने एज में जा रहे हैं, 1970s, 80s, 90s, तो डिफरेंट कट्स में आ गए, स्ट्रेट पैंट से हट चुके हैं। तो बेसिकली हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा फ्यूज़ दिखाना था रैम्प पे, और उसको टॉप अप करने के लिए फिरोज़ खान ने शो स्टॉप किया, तो इट वेंट ग्रेट माशाल्लाह। हुमायूं, यकीनन जब भी आप आते हैं तो बड़े मुख्तलिफ ट्रेंड्स के साथ जो है आप अपना शोकेस करते हैं। ये जो आज यहाँ पर नुमाइश की गई है, इसकी इनिशिएटिव आपके जहन में किस तरीके से आया? यार, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा होता है विंटर का, शादी का, तो हमें एक शो करना था, और टी-डैप ने जब अनाउंस किया तब उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने वी थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, सो व्हाई नॉट। एक टी-डैप को भी सपोर्ट हो जाएगा, एक हमारी कलेक्शन भी सामने आ जाएगी। टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। आपने चेस किस तरीके से किया? यकीनन कॉम्पिटिटर भी मार्केट में बहुत सारे होते हैं, और फिर जब वक्त कम होता है तो मुकाबला। मैं असल में
अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। अगर आप अपनी 100% देंगे और अपना लुक बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे, एंड इफ़ यू डू योर होमवर्क, यू डोंट हैव टू सी राइट और लेफ्ट कि कौन कंपटीशन है कौन नहीं है। आई डोंट थिंक दैट। अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड, तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो यही सोच जो है इंसान को मुतारिफ करवाती है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर नीयत शफाफ हो तो हर काम आसान हो जाता है। किसी और के लिए आप जो है मसले मसाइल नहीं क्रिएट करें, अपने काम पर तवज्जो दें तो वह हर काम आसान हो जाता है। हिमायू इतना खूबसूरत सा मेला सजा हुआ है, और दूसरा आपने बताया कि विंटर सीज़न है, इसके अलावा वेडिंग बेल्स भी है, तो इसके हवाले से फिर क्या कहेंगे? यार उसकी तैयारी शुरू है, तैयारी की अब तो सीज़न के अंदर आ गए हम एक्चुअली। शादियों के टाइम ऑर्डर सब शुरू हो गया है, और होपफुली कराची में थोड़ी विंटर ज़्यादा है ताकि हम अपनी विंटर कलेक्शन ज़्यादा बेच सकें। बट यही दुआ कर सकते हैं कि और यही है कि बस मैं ये बोलूँगा कि आप एक एक चीज़ स्लोली लेके चलें, कॉन्सेंट्रेट करके, rather than डाइविंग इनटू 100 थिंग्स टुगेदर। टेक इट स्लो, टेक इट one by one, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई डू। आप यकीनन आपका जो एक प्रोफेशन है, ये जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी एक मशअल राह है। हम अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे पूछें कि हिमायू ने ग्रोन अप किस तरीके से किया, तो क्या आप मैसेज देंगे हमारे जो नए यंगस्टर्स डिज़ाइनर हैं? यार आपको अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए, और आपको गलतियाँ करनी पड़ती हैं, बार बार गलतियाँ करनी पड़ती हैं। मैंने आई स्टार्टेड, मैं 18 साल का था, अभी 18 से 19 साल हो गए माशाल्लाह जब से मैंने काम शुरू किया है। और पहले दिन तो मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं था, फिर पहले 5 साल मैंने कुछ सीखा, अगले 5 साल और सीखा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी शोज़ करने की, जितने भी रैम्स होंगे, शोज़ होंगे, उतने डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों का दिल बड़ा होगा। गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे, गलती करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। अभी बहुत टाइम बाद फैशन शो हो रहा है, 5 साल बाद, और आई होप और आई प्रे कि ये होता रहे, और साल में कम से कम 2 से 3 शोज़ तो हों, ताकि नए डिज़ाइनर्स आएँ, टैलेंट दिखाएँ, कुछ करके दिखाएँ। रैम वॉक का सिलसिला भी एक तरफ जारी है, तो दूसरी जानिब जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पर अपनी ही कह सकते हैं कि वो मॉडल्स को तो उन्होंने जो है बड़े खूबसूरत से लिबास पहनाए हुए हैं, लेकिन ख़ुद भी जो है किसी से कम नहीं दिखते हैं। अवैस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिज़ाइनर हैं। अवैस, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये अवैस का ही तख्लीक करता है? एग्जैक्टली, आई डिड इट, आई मेड इट। ज़बरदस्त। तो ये क्या, कौन सा कलर कहलाता है, और ये पार्टी वेयर है कि वेडिंग वेयर है? बेसिकली इट्स ग्रे, इट्स ग्रे, इट्स सिल्वर, इट्स मिक्स ऑफ दैट। अच्छा वैसे मुझे बताएं, कलेक्शन कौन सी थी आज, किस पर मबनी थी? बेसिकली माई कलेक्शन वॉज यूफोरिया, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो आई शोड माई गारमेंट्स इस तरह से कि वो बहुत ग्लैम के ऊपर डिपेंड करता था, तो दैट्स द थिंग। कितना टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने में? It almost took almost 4 months. 4 months? Yeah. It took 4 months? Because it was a thesis thing. Okay. So yeah. 4 महीने कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? 4 महीने कम होते हैं। 4 महीने कम होते हैं because we have to do all the thing खुद से, हमें खुद से करना पड़ता है सब कुछ। तो जितने भी मेरे गारमेंट में जितनी भी चीज़ें थी उसमें, चाहे वो स्टिचिंग हो, एम्बेलिशमेंट हो, सारी चीज़ें हो, मैंने वो सब कुछ खुद किया है। अच्छा, डिज़ाइनर जब बनता है एक बंदा, लेकिन इसके लिए स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, तो इस हम आपसे पूछेंगे स्टडी कौन सी ज़रूरी होती है? फैशन इंडस्ट्री का अगर सेंस आपने लेना है तो कौन सी वो पढ़ाई है जो कि इट इज़ टू मच एसेंशियल फॉर एवरीवन? डेफिनेटली आपको फैशन में अगर आपने आना है तो यू हैव टू लर्न फैशन, यू हैव टू डू फैशन डिज़ाइन डेफिनेटली, बिकॉज इसके अलावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से आपको फैशन के बेसिक्स पता चलते हैं, उसी से आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। फैशन के डिज़ाइन भी पता लगते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। आपने जो ड्रेस पहना हुआ है ये क्या, कौन सा कपड़ा है, क्या है ये? बेसिकली इट्स लावा सिल्क, सही है। एंड ये पहनने का रीज़न ये है कि बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स माई थीम, दैट्स द थिंग। वेरी गुड। शो स्टॉपर कौन था आपके इसमें? दानिया खान। दानिया खान, या। So, any particular reason to select the name of Dania? The main reason was when I saw Dania ना, तो मैंने तभी बोल दिया था कि मुझे शो स्टॉपर इसी को ही रखना है, बिकॉज द वे शी वॉक्स, इट वॉज लाइक
breathtaking for me. That's why. That's the reason. That's cool. Any message would you like to give to the audience and to the younger students as well? Just believe in yourself and do whatever you want. I know it's very hard for male डिज़ाइनर्स के मेल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को आगे लेकर चलना बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी. तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट. Believe in yourself and do your best. बहुत खूबसूरत बात की. थैंक यू सो मच अवैस. हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से ये वाले जो पैगामात हैं आगे तक पहुंचाएं और आप जैसे यंगस्टर्स मजीद इस इंडस्ट्री में जो है कदम रखें. अवैस हमारे साथ डिज़ाइनर मौजूद थे. अब प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे. ब्रेक के बाद और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम. और सकाफती मेला जो है, जो कि फ़ैशन शो है, अपने आबोताब से जारी है. और ना कि सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनर्स बल्कि जो फ़नून लतीफ़ा से और फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक जो अफराद हैं और जो कि बहुत शौक़ भी रखते हैं फ़ैशन से मुतल्लिक, एक जायका रखते हैं, कुछ मालूमात रखते हैं, तो उनकी भी कसीर तादाद आज इस फ़ैशन शो में मौजूद हैं. उनमें से एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं. मुझे बताइए, इतना खूबसूरत सा फ़ैशन शो जो है वो आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है. बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है. कौन कौन सी वैरायटी आज आपकी तवज्जो का मरकज़ बनी? जी अस्सलाम वालेकुम. जो टेक्सपो ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे फ़ैशन शो, मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छा एक स्टेप अप है. यहाँ पे जितने भी न्यू डिज़ाइनर्स हैं, इमर्जिंग डिज़ाइनर्स, मुझे उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ वो क्रिएटिविटी से भरी हुई थी. उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से स्टिच किए हुए हैं और मेरे ख़्याल से हमारी जो पाकिस्तान में इतनी क्रिएटिविटी है, टेक्सपो और भी मौके देगा इंशाल्लाह. और बाकी डिज़ाइनर्स के साथ मिलके उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो अपना काम शोकेस करें और हम सबको एंटरटेन करें और हमारे लिए ही अच्छी एक चीज़ बाहर लेकर आएँ. बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको इसको सपोर्ट भी करना चाहिए. अच्छा, एक अगर आम पब्लिक की नज़र से देखा जाए तो फैशन से मुतल्लिक एक आम पब्लिक की नज़र क्या कहती है? आम पब्लिक की नज़र से तो मैं इतना नहीं बोल सकती, मैं अपनी नज़र से बता सकती हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ फ़ैशन की दुनिया से है. मैं भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन की ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. और ये है कि फ़ैशन हैज़ नो बाउंड्रीज़. तो आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आपने उसको पेन डाउन करके उसको गारमेंट पे डिज़ाइन करना है तो वो दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा शोकेस करके एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म पे भी और एक क्रिएटिविटी के फॉर्म में भी और अपनी फीलिंग्स के फॉर्म में भी आप उसको डिस्प्ले करके सबको एंटरटेन करें. दैट्स इट. आप खुद भी एक डिज़ाइनर हैं. मौजूदा मुल्क की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो एक डिज़ाइनर को वैसे किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अब ये तो पूरी दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है, एक सिर्फ डिज़ाइनर के लिए नहीं बल्कि जो भी शख्सियात यहाँ पे जो भी बिज़नेस ओनर्स हैं सबके लिए एक प्रॉब्लम हुई हुई है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है. तो ये यूनिवर्सल फैक्टर ही चल रहा है. अभी देखें इंशाल्लाह हमारी टेक्सपो की वजह से TDAP ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक्सपो सेंटर में बड़े अच्छे यहाँ पे इंटरनेशनल लोगों ने भी शोकेस किया है, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा. ये नहीं समझते हैं कि अगर इस चीज़ को मज़ीद मुस्तहकम करना है, स्टेबिलिटी की जानिब लेकर जाना है तो टेक्सपो साल में 2 दफ़ा होना चाहिए. टेक्सपो नहीं तो और इस तरीके के जो इवेंट्स हैं साल में कम से कम 2 दफ़ा हों कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक स्कोप मिल सके. इंशाल्लाह ज़रूर होगा. आई थिंक दिस इज़ द बिगिनिंग. बेबी स्टेप्स के साथ ही चल रहे हैं तो डेफिनेटली होना चाहिए. बड़े खूबसूरत बात की कि ये ग्रेजुअली ये स्टेप है. इवेंचुअली तो बहुत कुछ हो जाता है लेकिन ग्रेजुअली ही स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरीके का ग्राउंड बनाया जाए, उसके बाद जो इसमें खेलने में भी यकीनन मज़ा. आपका बेहद शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे डिज़ाइनर्स जो हैं अपना काम इसी तरीके से रवा दवा रखें ताकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मज़ीद मुस्तहकम हो सके. थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस. यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो भी हमें उरूज पर दिखाई देती है. कुछ ही देर में यहाँ पर जो है खूबसूरत सी मॉडल्स जो हैं वो जलवे बिखेरने को तैयार हैं.
पॉइंट फैशन शो में रंगों की बहार है और ना कि सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तानी बल्कि बरतानिया से, अमेरिका से और बहुत सारे ममालिक से जो हमारे मंदूबीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और नीदरलैंड से कुछ हमारे जो लोग हैं, जो फ़नकार हैं, मंदूबीन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड वेलकम टू पाकिस्तान। ओके, आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन इन कराची एंड यू हैव विजिटेड द फैशन शो ऑफ पाकिस्तान एंड इन कराची। What would you like to say regarding it? Yeah, it's very nice to say that there is such a beautiful collection going on here and in this beautiful city. It's really nice to be here. What would you like to say? The cultural diversity, the cultural, you can say, the positive image of Pakistan. Yes, it's very lovely to be here and the fashion show is very amazing. All the collections are beautiful. You both are from Netherlands, I guess. Oh, but you look Pakistani. Yeah, I know. Well, my grandma was from Indonesia, so that's why I look like Pakistani. Netherlands and Indonesia both are the very humble countries, and Pakistan always respect both the nations. It's a cultural event. You have seen the diversity and you have seen the traditional clothes of our designers. So any particular thing that which you have noticed? Yeah, there was a Dutch designer as well. So there was a designer from the Netherlands, which was really great to see here with all the collections from here, and the beautiful handwork really shows through with all the fashion pieces. In Netherlands, people usually used to wear Western clothes or a kind of Eastern clothes in Netherlands. The question was? The question in Netherlands, people used to wear Western clothes or the traditional clothes. No traditional clothes, only Western clothes in the Netherlands, yeah. Okay, any particular thing which you have noticed in the fashion show regarding the handcraft or other things, other stuff? It's very expensive, very nice handwork. Much things I noticed, yes. There is one actress, she's name is Hania Amir, and she is one of the popular actresses in Pakistan. Yeah, and your face is too much similar. Oh, thank you. Any message would you like to give to the audience? As a tourist, yes, thank you for inviting us. It's lovely to be here, and the expo was also amazing to visit, and the fashion show, yeah, it's amazing. Yes. Have you eat any kind of stuff in Pakistan? Yes, a lot. The Pakistani food is good. It's very good. It was What very. do you have it? We don't know the names, but we had a lot of it. I like each day that we were here. So There is an activity and you have to do a tongue twister. It is a very easy tongue twister. I think you can easily do it. I wish to wash my iris wristwatch. I wish to wash my iris wristwatch. I wish to. No, I know I can do it. I wish to wash my iris wristwatch. I don't know. Okay. Any kind of message would you like to give as a tourist? Yeah, come visit this country. It's beautiful. So will you visit us again? Yeah, for sure. Yes. Definitely, yes. Thank you so much guys to being with us, and I hope that you will going to visit us again and again, and in future I will definitely recommend you to eat biryani because biryani. We ate that. Yeah, that was good. Yeah. Okay, thank you guys, thank you so much. Pakistan, Netherlands. Yes, thank you. मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं, यकीनन यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर की नुमाइंदगी या इस लिहाज से की जा रही है कि यहाँ पर वेस्टर्न, ईस्टर्न और भी बहुत सारे मुख्तलिफ जो मलबूसात हैं तो उसकी नुमाइश जो है यहाँ पर सजाई गई है। और डिज़ाइनर तलहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि ख़ुद भी मॉडल से कम नहीं दिख रहे हैं। तलहा, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, आज आपने यहाँ पर जो है जो मॉडल्स थी तो उनकी जो ड्रेस थी वो किस थीम पर मबनी थी? मेरी थीम बेसिकली हरासमेंट पर थी।
it's about blood and trauma and all. That is what I was presenting over here. A very dark part of humanity, but it is a part of humanity. So I was trying to acknowledge that and bring it to light. That's what I was trying to do. It is a part of humanity and it is a part of reality as well. आई थिंक इसको सोचना, इस मौजू को उजागर करना ही बड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम तलहा से पूछें कि ये मौजू आपके जहन में किस तरीके से आया, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सकाफ़त के रंग हैं, वहाँ पर इतने पर्टिकुलर, इतने सेंसिटिव मौजू को उजागर करना, तो क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि सब सकाफ़त के बारे में, सब रंगों के बारे में, सब खुश चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँ जिसके बारे में लोग बात करना बहुत कम करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, जो एक टैबू है हमारी सोसाइटी में। that's why I wanted to do like work on this theme. It is a kind of great initiative and the great thinking कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो हैरेसमेंट के जो हम केसेस आजकल अपने माशरे में देख रहे हैं, तो फैशन के थ्रू जो है इन्होंने एक आगाही जो है, एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की है। क्या मैसेज था, क्या थीम थी? थीम तो आपने बता दी, बेसिकली पर्टिकुलर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? ओके, तो मेरा मैसेज ये था कि जो हीलिंग जर्नी होती है इंसान की, वो बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे दुनिया को ये मैसेज देना था कि जो लोग हील कर रहे होते हैं, गिव देम टाइम, गिव देम देयर स्पेस, जस्ट लेट देम हील। क्योंकि एक और बात हीलिंग के बारे में ये कि हीलिंग इज़ नॉट अ लिनियर प्रोसेस. Healing comes and goes. So we should give people time to heal from their traumas and from incidents like these. That's what my whole initiative was with this collection. टैबू हमारी ज़िंदगी में आजकल जो है बहुत सारे हम ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर टैबू जो है वो एक बंदा बन जाता है या बंदी बन जाती है, और कुछ वाक़यात जो हैं वो जहन पर रुनुमा हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कभी भी उससे जो है फ्री नहीं हो पाता। इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी, किस तरीके से इसको शोकेस किया? जो मेरी कलेक्शन थी इसको मैंने बहुत ग्लैमरस शो करने की कोशिश की है, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा मतलब सैड थी, तो मैंने कोशिश की कि उसको मैं थोड़ा ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट करूं, ताकि कंज्यूमर के लिए भी वो ठीक हो, देखने वाले के लिए भी वो देख सके। तभी उसके अंदर मैंने स्टोन्स यूज़ किया, वाइट कलर यूज़ किया, पर्ल्स यूज़ किए, जस्ट टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। लुक्स ब्यूटीफुल। और सफ़ेद कलर एक ऐसा कलर है जो कि अमन की अलामत समझा जाता है, अमन की अलामत भी समझा जाता है, और एक सोक की अलामत भी समझा जाता है। तभी मैंने सफ़ेद कलर यूज़ किया। यस, लव के आपके इस तरीके के जो फैशन शो हैं या इस तरीके का जो मैसेज है, और भी लोग जो है इसको अपनाएं और ये थिंकिंग जो है वो फैले। बहुत शुक्रिया तला आपका। खूबसूरत रंगों पर मबनी ये सकाफती मेला जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। ये मेला ना कि सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की अक्कासी करता हुआ हमें दिखाई दिया, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ममालिक की तर्जुमानी इस लिहाज से की गई कि मुख्तलिफ सकाफत के जो रंग हैं आज हमें यहाँ पर देखने को नज़र आए। ना कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़नकार, पाकिस्तानी मॉडल्स, बल्कि गैर मुल्की जो मंदुमीन हैं वो भी पाकिस्तान की इस एफर्ट को काफ़ी सराहते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर नीदरलैंड के मंदुमीन मौजूद थे, इसके अलावा नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और बहुत सारे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो मंदुमीन थे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। काउंसिल जर्नल्स भी थे। खूबसूरत सा मेला था, सकाफती मेला था, फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी, और सिर्फ इस इवेंट का मकसद ये था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस लिहाज से की जाए कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जो है उसकी कह सकते हैं कि उसको नुमाया तौर पे जो है उजागर किया जाए, और बताया जाए कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि एक गुलदस्ते की मालिक है, और यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को जो है, तमाम तर सकाफत के रंगों को अपने अंदर जो है वो समा लेता है। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद को प्रोग्राम टी टाइम विद वॉइस ऑफ साउथ एशिया से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।